ضمنی انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ جاری سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے درمیان زور کا جوڑ پنجاب سے قومی اسمبلی کے 2 کے پی سے 2 اور سندھ سے 1 حلقے میں الیکشن ہے پنجاب کے 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 صوبائی حلقے شامل ہیں ووٹنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر مامور ہیں پنجاب کے 419 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار لاہور شیخوپورہ اور قصور سمیت 16 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہیں ضمن انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ جاری ہے سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے درمیان زور کا جوڑ ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کے 2 کے پی کے 2 اور سندھ کے 1 حلقے میں الیکشن ہے جبکہ پنجاب کے 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 صوبائی حلقے بھی شامل ہیں ووٹنگ کا عمل بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر مامور ہیں اور پنجاب کے 419 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار پائے گئے لاہور شیخوپورہ اور قصور سمیت 16 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند ہے ضمنی انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ جاری ہے سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے درمیان زور کا جوڑ متوقع ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کے 2 کے پی کے 2 اور سندھ کے 1 حلقے میں الیکشن جبکہ صوبائی حلقوں کی بات کی جائے تو پنجاب کے 12 بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 2 صوبائی حلقے شامل ہیں ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہے جو 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا پولنگ سٹیشنز پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں اور لیئرز کے حساب سے سیکیورٹی ہے فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے دوسرے اور تیسرے حصار کے طور پر مامور ہیں پنجاب کے 419 پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار اور جہاں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں کیمرے بھی لگے ہیں لاہور شیخوپورہ اور قصور سمیت 16 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کیا گیا ہے ضمنی انتخابات کا دنگل 21 حلقوں میں پولنگ جاری ہے سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ کے درمیان زور کا جوڑ ہے پنجاب سے قومی اسمبلی کے 2 کے پی کے 2 اور سندھ کے 1 حلقے میں الیکشن ہے مختلف حلقوں میں موجود ہیں ہمارے نمائندگان صورتحال کیا ہے انہی سے جانیں گے سب سے پہلے رخ کریں گے لاہور کے حلقہ NA 119 کا جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے میاں اسلم اپڈیٹ کیجیے گا اب تک صورتحال کیا رہی بدنظمی بھی دیکھنے کو ملی جی بالکل اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور کا NA 119 کا حلقہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے سیٹ چھوڑنے پر جو ہے وہ خالی ہوا تھا اس حلقے میں جو ہے وہ صبح سے ٹینشن موجود تھی ایجیٹیشن ہو رہی تھی جو اب بھی اس وقت بھی جو ہے وہ کہیں کہیں جو ہے وہ جاری ہے 3 مختلف اس حلقے کے 3 مختلف پولنگ سٹیشن کے اوپر جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف اور استحکام پاکستان پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں شعیب صدیقی اور دوسری جانب علی جو ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ وہاں پر ایجیٹیشن بھی شروع ہوئی جو پولنگ کیمپ تھے پولنگ کیمپ لگانے پر جو ہے وہ جھگڑا شروع ہوا اور 2 مقامات پر تو اتنا جھگڑا ہوا کہ آپس میں پتھراؤ ہوا ایک دوسرے کو مارا پیٹا گیا گالم گلوچ ہوا کپڑے پھٹ گئے اور 2 کارکن جو ہیں وہ تحریک انصاف کے وہ زخمی بھی ہوئے لیکن پولیس نے فوری اس پر ریئیکشن دیا اور پولیس نے جو ہے وہ تقریباً 11 مجموعی طور پر یہ 3 مختلف واقعات میں 11 کارکن دونوں جماعتوں کے جو ہے وہ گرفتار کر لیے 3 کارکن جو استحکام پاکستان پارٹی کے گرفتار کر لیے تھے وہ ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا ہے لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں جو ہے وہ ابھی تک انہیں چھوڑنے کی اطلاع نہیں ملی اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو انتہائی مایوس کن ٹرن آؤٹ ہے ابھی تک اگر آپ یہ جس پولنگ سٹیشن پر میں کھڑا ہوں علامہ اقبال روڈ گڑھی شاہو یہاں پر جو ہے وہ 3 مختلف پولنگ سٹیشن پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں تقریباً 1100 یہاں پر ووٹ ہے اور اب تک صرف 57 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے ہیں لیکن کینڈیڈیٹس پر امید ہیں کہ جیسے جیسے دن آگے گزرے گا دوپہر 1 بجے 2 بجے کے بعد جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا گرمی کی شدت کم ہوگی تو لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا ووٹ جو ہے وہ یہاں پر کاسٹ کریں گے میاں اسلم آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بات کر رہیں گے ندیم چودھری سے جو لاہور کے صوبائی حلقہ PP 147 میں موجود ہیں جی ندیم بتائے گا یہاں کی صورتحال کیا ہے ٹرن آؤٹ کتنا ہے جی بالکل لاہور اس کے بعد اندرون لاہور یہ جو جس حلقے میں ہم موجود ہیں یہ PP 147 کہلاتا ہے یہ سارے کا سارا تقریباً وارڈ سٹی
अंदरून लाहौर जो है उसके ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें यक्की गेट, भाटी गेट, दिल्ली गेट, शेरावाला गेट, यूँ जितने भी गेट्स हैं तमाम के तमाम दरवाज़ों के अंदर का जो इलाका है वो PP 147 में मुश्तमिल है। यहाँ पर टर्न आउट इंतहाई मायूस कन इस लिहाज से है कि जहाँ पर इस वक्त हम गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज के बाहर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद जो एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर 1188 वोटों में से गुज़श्ता 4 घंटों के दौरान सिर्फ और सिर्फ 24 वोट अब तक कास्ट हो सके हैं। यही सूरत हाल जो दीगर इलाकों के अंदर वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। उसकी बुनियादी वजह ये है चूँकि इतवार का दिन है, छुट्टी होती है और लाहौरिये इतवार को लेट उठते हैं, उसके बाद बाहर का नाश्ता करते हैं और तकरीबन 1 बजे के बाद वो दीगर जो मसरूफियात होती हैं, चाहे वो किसी को मिलना मिलाना हो, कहीं पे आना जाना हो या बच्चों को लेकर बाहर घूमना फिरना हो, वो तमाम की तमाम उनकी जो मसरूफियात हैं वो दोपहर 1 बजे के बाद शुरू होती हैं। लेकिन आज लाहौर में चूँकि खासी गर्मी भी है, दर्जा हरारत इस वक्त 32 दर्जा सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है, तो इस वजह से लोग अभी तक अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं गर्मी की वजह से और छुट्टी की वजह से, तो लोग अभी तक बाहर नहीं निकले। यही वजह है कि टर्न आउट इंतहाई मायूस कुन हद तक, खासी हद तक यहाँ पर कम हमें नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त और कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिस तरह की सूरत हाल NA 119 में हुई। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है PP 147 में मजमूई तौर के ऊपर इंतहाई पुरअमन सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में है। साकिब सलीम भट्ट जो कि लाहौर के हल्का PP 158 में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलेंगे। साकिब बताइएगा इस हल्के में सूरत हाल क्या रही है, टर्न आउट कैसा है? जी बिल्कुल जो है PP 158 में जैसे कि नदीम चौधरी और मियां असलम साहब ने बताया कि वहाँ पे टर्नआउट बहुत कम है, उसकी निस्बत यहाँ ज़रा बेहतर है। सुबह 8 बजे से यहाँ पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, उस टाइम तादाद कम थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तादाद में इजाफा हो रहा है। मर्द भी बाहर निकल रहे हैं शदीद गर्मी में, ख़वातीन भी अपने बच्चों को लेकर बाहर आई हुई हैं वोट कास्ट करने, तो यहाँ पर टर्नआउट थोड़ा सा बेहतर है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 4 घंटे हो गए हैं, पुरअमन तरीके से इंतखाबात जो है वह जारी हैं, लोग आ रहे हैं, चेकिंग करवा रहे हैं, जा रहे हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी मोबाइल शहरी को जो है मोबाइल लेके जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिक्योरिटी जो है बेहतरीन तरीके से की गई है। जितने पोलिंग स्टेशन से मैंने विजिट किया पुरअमन तरीके से, क्योंकि सारा काना का इलाका है और ये सीट के ऊपर मियां शहबाज शरीफ जो है वो जीते थे, उसके बाद खाली हुई था। अब मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद नवाज यहाँ के कैंडिडेट है और उनके मुकाबले जो कांटेदार मुकाबला है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मोहन सलाही हैं। अब मोहन सलाही तो यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें उनके मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट भी यहाँ पे विजिट करते नजर नहीं है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काना के अंदर बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे 2 पोलिंग स्टेशन बने गए, 158 भी और 164 भी, तो यहाँ पर जो है खासा ज्यादा रश है बाकियों के निस्बत। तो मर्द और खवातीन यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पे PP 164 के दोनों कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून के और PTA के दोनों ही विजिट करने के यहाँ पे आ गए। वहाँ पे खासा जो है वो शोरगुल यहाँ पे हुआ, नारेबाजी हुई। PTA के कैंडिडेट्स ने अपने कैंडिडेट को उठा के विनिंग जो स्पीच है वो वाली सिचुएशन स्टार्ट हो गई और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने जो थे उनके कारकुन थे उन्होंने अपने कैंडिडेट को उठा लिया। तो एक खासा यहाँ पे जो है पुरजोश माहौल था, नारेबाजी भी काफी हुई। उसके बाद रूटीन पे आ गए और अभी भी जो है अभी आखिरी 5 घंटे हैं, 5 घंटे के अंदर कुछ भी पासा पलट सकता है। अब देखना ये है कि PP 168 जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहलाया जाता है और शहबाज शरीफ जहाँ से पासा पलट सकता है, शहरी बाहर निकल सकते हैं। साकिब सलीम आप हमारे साथ ही रहिएगा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, तारिक इस्माइल से मौजूद हैं डेरा गाजी खान के हल्का PP 290 में। जी तारिक बताएगा यहाँ की सूरत हाल क्या है, टर्न आउट कितना है, क्योंकि लाहौर में टर्न आउट तो काफी कम है। जी डेरा गाजी खान के सूबाई हल्का PP 290 पर पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर कहा जा सकता है कि पुरअमन माहौल में जारी है। 2 पोलिंग स्टेशनों पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात पेश आए हैं। शेरू जदीद के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ है, वहाँ पर पोलिंग का अमल भी कुछ देर के लिए मुअत्तल किया गया, लेकिन पुलिस की तरफ से फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मामलात को कंट्रोल किया गया और पोलिंग का अमल बहाल कर दिया गया। इसी तरह बस्ती मलाना के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स के दरमियान तलखी हुई, जिसके बाद पोलिंग का अमल रोका गया, ताहम अब वहाँ भी बहाल कर दिया गया है। डेरा गाजी खान में 117 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें से 13 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया, जबकि 34 पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया गया है। हसास करार दिए गए पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और साथ साथ उनके मॉनिटरिंग रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त जब हम टर्न आउट की बात करते हैं तो सुबह टर्न आउट कुछ बेहतर नजर आ रहा था, ताहम अब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है टर्न आउट कम है और जिस पोलिंग स्टेशन पर हम मौजूद हैं यहाँ पर 5000 से ज़ायद
वोटर्स का इंदराज है और अब तक जो हमने मालूमात इकट्ठी की है टोटल 700 के करीब वोट कास्ट हो सके हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा 3 बजे के बाद यहाँ पर पोलिंग स्टेशनों पर कोई बेहतर टर्न आउट नजर आएगा। इस वक्त तक का टर्न आउट जो है उसको मायूसकुन कहा जा सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो पुलिस के 1900 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए हैं और पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते QRF के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक इस्माइल, साकिब सलीम भट्ट, नदीम चौधरी और मियां असलम मुख्तलिफ हल्कों की सूरत हाल आप हम तक पहुँचा रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरात के हल्का PP 32 में पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल सत्तार मिर्जा से, जो इस वक्त सरगोदा रोड पोलिंग स्टेशन पर मौजूद। जी बताएगा यहाँ क्या मामलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुजरात के हल्का PP 32 के सरगोदा रोड पर पोलिंग स्टेशन 32 और 33 में मौजूद हूँ, जहाँ पोलिंग का अमल जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। मुल्क भर की तरह यहाँ भी सुबह 8 बजे जो है पोलिंग के अमल का आगाज़ हो चुका था और लेकिन अभी तक जो है 80 के करीब जो है वोटर जो है मजमूई तौर पर वो कास्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ जो वोटर्स की तादाद है वो 2300 के करीब लगभग है और खासा टर्नआउट जो है वो कम दिखाई दे रहा है। इस माजी के इलेक्शनों से बिल्कुल बरक्स, ना तो वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने और वापस घरों तक ले जाने के लिए ना तो कोई ट्रांसपोर्ट का जो इंतज़ाम है और ना ही पोलिंग स्टेशनों के बाहर जो है जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से जो कोई पोलिंग कैंप लगाए गए हैं और इस वजह से लग रहा है कि पोलिंग का टर्नआउट खासा कम दिखाई दे रहा है। गुजरात के इस पे हल्का PP 32 में जो है 2,54,903 जो है वोटर जो है वो हक़ राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे और इसके अलावा जो है 168 जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ कायम किए गए थे, जिनकी निगरानी के लिए पुलिस रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं और जहाँ 7 पोलिंग स्टेशनों को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जिनका जो कंट्रोल रूम है डिप्टी कमिश्नर जो है रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके ऑफिस में कायम किया है, जहाँ से ये सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। ताहम जो है असल मुकाबला जो है यहाँ ज़हूर लाई ख़ानदान के दरमियान है, जहाँ चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी मूसा लाई आपने एक दूसरे के मध्य मुकाबला और उनके समेत जो है वो 13 उम्मीदवारान जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी अब्दुल सत्तार मिर्जा, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएंगे वज़ीराबाद के हल्का PP 36 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे तैयब मुगल गवर्नमेंट हाई स्कूल ढल्ला चट्टा के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीराबाद के हल्का PP 36 में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिला में पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। 3,18,544 जो वोटर है वो अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। 185 जो है पोलिंग स्टेशन जो है वो इस हल्के में कायम किए गए हैं। इनमें 17 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास तरीन करार दिया गया है, जहाँ पर CCTV कैमरों की मदद से जो है वो पोलिंग के अमल को मॉनिटर किया जा रहा है। पोलिंग के आगाज़ पर वोटर की जो तादाद थी वो ना होने के बराबर थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल डल्ला चट्टा में मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर वोटर जो है वो लाइनों में लाके वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वोटर जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की जो बड़ी नफरी तैनात है, जो भी वोटर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं उनकी तलाशी ली जा रही है और किसी को भी मोबाइल अंदर लेके आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि जो बुजुर्ग ख़वातीन और मर्द हैं वो भी सहारा लेकर अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं, चूँकि यहाँ हल्के में 90% जो इलाका है वो देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर लोगों ने पहले अपने कामकाज निपटाए, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो कामकाज ख़त्म करने के बाद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन A कैटेगरी और B कैटेगरी में शामिल है, वहाँ पर पुलिस की जो नफरी है वो मामूल से हट गई और पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर ना सिर्फ चौकन्ना खड़ी है बल्कि अंदर और बाहर जो रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो खड़ी है और कोई भी ना ऐसा वाक़या जो निपटने के लिए पुलिस तैयार है। जी शुक्रिया तैयब, अपडेट करने के लिए। भक्कर के हल्का PP 93 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। गंदम की कटाई के बाद टर्न आउट कम है, जिसकी वजह से उम्मीदवार परेशान हैं। इसी हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना आमिर असलम से। बताइएगा आमिर, क्या सूरत हाल है इलाके की? जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के जिन 21 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें बक्कर का हल्का PP 93-5 भी शामिल है, जहां पर 6 उम्मीदवारान एक दूसरे के मुद्दे मुकाबिल हैं, जबकि टोटल वोटर्स की तादाद जो है वो 2,14,070 है।
तो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उम्मीदवारान की जानिब से इंतहाई धुआंधार तरीके से कैंपेन चलाई गई थी और तवक्को ये की जा रही थी कि टर्न आउट ज़्यादा होगा, लेकिन इस वक्त जो है वो हल्के भर में 10 से 15% तक वोट कास्ट हुआ है और इस सूरत हाल के पेश नज़र उम्मीदवारान परेशान नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए उनके जो इलेक्शन कैंप बने हैं तो वहाँ पर एजेंट भी मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन के हवाले से जो अमला है वो भी पोलिंग स्टेशंस पर मौजूद है। सिक्योरिटी के खातिर खा इंतज़ामात भी देखने में आ रहे हैं, लेकिन वोटर्स जिसका इंतज़ार है वो अभी तक नहीं आ रहा। तो इसकी बुनियादी वजह जो है वो सामने जो आई है वो यहाँ पर गंदम की कटाई का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। उम्मीदवारान की जानिब से अब कोशिश ये की जा रही है कि मुकर्ररा वक्त जो 5 बजे का मुकर्रर है, शाम 5 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग स्टेशंस पर लाया जाए और अपनी जीत के लिए राह को हमवार किया जाए। जी। नारोवाल में पीपी चवन के गांव कोटनाचू में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग नून के कारकुन जाँ बहक हुआ और मुखालिफिन ने 60 साला मोहम्मद यूसुफ के सर में डंडा मारा। अस्पताल मुंतकिली के दौरान जान की बाजी हार गया। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। नारोवाल में पीपी चवन के गांव में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में झगड़ा हुआ। लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग नून का कारकुन जाँ बहक हो गया। मुखालिफिन ने 60 साला मोहम्मद यूसुफ के सर में डंडा मारा। अस्पताल मुंतकिली के दौरान जान की बाजी हार गया। नारोवाल में पीपी चवन के गांव में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनान में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन जान बहक हो गया। मारूफ सहाफ़ी नासिर ज़ैदी को एहफाजुर रहमान अवार्ड बराए जुर्रत और आज़ादी इजहार से नवाजा गया। नासिर ज़ैदी ने अवार्ड को जद्दोजहद करने वाले सहाफ़ियों, सियासी कारकुनान और नौजवानों के नाम कर दिया। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक सेक्रेटरी जनरल नासिर ज़ैदी को मारूफ सहाफ़ी, शायर और अदीब एहफाजुर रहमान मरहूम के नाम से मंसूब अवार्ड दिया गया। आमिराना दौर में सरेआम कौड़े खाने वाले नासिर ज़ैदी ने मुल्क में आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार और मीडिया वर्कर्स के हकूक़ के लिए हर जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। नासिर ज़ैदी ने कहा, जमहूरी इक़दार को तक़वियत देने के लिए आईन और कानून की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद करना होगी। जद्दोजहद करने वालों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आज कैसे आना हुआ? कराची में होने वाले 29वें आलमी मुशायरे में अहले ज़ौक़ ने लफ्ज़ों का जादू देखा, लफ्ज़ों की खुशबू को फिजाओं में महसूस किया। दुनिया भर से आए शोरा को सुनने शहरियों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी अशआर कहे और मेला लूट लिया। तहजीब के रोशन चिराग, जबान से मोहब्बत का इजहार, रात गए एक्सपो सेंटर कराची दादो तहसीन की सदाओं से गुजता रहा। साकराना शहर कायद के तहत 29वें आलमी मुशायरे के लिए पंडाल को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। बंद रखना तुम अपनी आंखों को, नींद टूटी तो ख्वाब उठेंगे और मिलने में जिसने हमसे जमाने लगा दिए, हमने भी उसके होश ठिकाने लगा दिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी मुशायरे में शिरकत की और अशार सुनाकर खूब दाद वसूल की। एक उम्र से फरेबे सफर खा रहा हूँ मैं, मालूम ही नहीं कि किधर जा रहा हूँ मैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर के शोरा ने मुशायरे में शिरकत की। भारतीय शायर राजेश रेड्डी की शायरी को भी खूब सराहा गया। नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उठाए जा रहे हैं। दुनिया बुलाती रह गई, हम ही नहीं गए, क्या मुफलिसी में रौनक के बाजार देखना। महफिल शेर और सुखन में शुगन सनासों की बड़ी तादाद में शिरकत इस बात की नवीद है कि आइंदा भी अदबी मैदान की सरजमीन यूं ही सैराब रहेगी। तुम मेरे दिल में आके ठहरे हो, इससे बढ़कर सही क्या होगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।